And moving ahead in our program, we have with us Mr. Vijay Kedia. Vijay ji, sorry, we are running a little behind schedule. So, anyway, you got a chance. So, To we listen have. to promote investing community. Yeah. So, friends, this is really an extreme. We just listened to Ramesh ji, who's so well known, Bharat Bhai, gold medalist CA, I am Kolkata, the again gold medalist CA. And then a successful investor from right. And then we have Vijay ji, who I fondly call Vijay uncle at times. And now let me take a different tweak. Now, Vijay, I read somewhere कि आप 10th standard में fail हो गए थे. You flunked your 10th standard, all right? And you're no less an investor than anyone else. So could you tell me, if I can ask you this question, because again, India, young population, and some people who are, I'm intelligent, I'm a genius, and some people, no, I don't know anything. So we get all sorts of, does investment or capital market distinguish, need that minimum qualification or minimum IQ or minimum something to be a successful investor? Could you give your thought on this? Do you know about Radhakishan Damani? Do I need to say anything after that? Yeah. So, who could be a better example than him, right? So now coming to your point, yes, I had failed what I was failed in class 10th, unfortunately. And somehow I did my graduation girte padte marte because otherwise nobody would give me, her daughter, to marry, So that was the reason that I somehow I completed my graduation. And it was really an unfortunate part of my life. I think education is most important factor in anyone's life, and it's a lifelong asset which goes along with you and grows along with you. You know, Somehow I couldn't do that. But later on, I realized that investing is a different animal. Investing is a different thing altogether. And there is a quote of mine which goes like this: that no academic degree can get you success, or cannot guarantee success in the stock market. Education is very important, but even after your education or after your whatever academical degree you have, you need to study market separately. For example, if you want to become a cricketer, it has got nothing to do with your MBA degree or your MIT degree or whatever it is. It is not adding any value to if you are choosing your career as a cricketer. I think same thing is applicable into a stock market. I've seen many chartered accountant, many MBA who had been a scholar in their students' life, and later on they have got a very, lucrative job or business or whatever it is. But when coming to investing, they cannot think beyond investing into penny stock, or they cannot hold their shares when they make profit of 5%, 10%, or 20%. They're out of the stock, and when it comes to losses, they can wait till it becomes zero. So what I am trying to tell you is this: that to be successful in investing, one has to learn investing. One has to learn investing, practice investing, and do investing in the market. And the more they fail in the market, the more they will learn. So this failure part is very important in the stock market. जितना गिरने वाले हो आप उतना ही आपको एक्सपीरियंस होने वाला है, और उतना ही जिंदगी में आप आगे बढ़ने वाले हो. ये शेयर बाजार हमको ये चीज सिखाता है. तो मेरे लिए शेयर बाजार का ये जो निटिग्रिटी समझने के लिए पिच पे रहकर खेलना ज्यादा जरूरी है. That's interesting, but I think again, of course my experience with intermediary, I've dealt with thousands of investors. कुछ लोग इतनी ज्यादा गलतियां करते हैं कि गलतियों से उठ नहीं पाते. Okay, so sometimes the cost of learning is so high that there's nothing left further. So probably, what would you say to that? Learn small, make small mistakes, big mistakes. I don't know. I love the comment made by Ramesh in the last thing. Because in the beginning, your wealth creation objective has to be end of life, not beginning of life. अभी अभी नौकरी शुरू की है तो अभी तुमको रिच होना है. So that I found that a very interesting line of thought. What do you say on that? सॉरी यार, मैं थोड़ा सा सुन नहीं पाया. आपने ये सुना रमेश? एक बार जरा प्लीज वापस बोलिए. Yeah, I'll repeat that. तो अब बोले कि आदमी गलती कर करके सीखेगा, right? That is perfectly all right. But कभी कभी गलतियां इतनी भारी पड़ती है कि तुम उभर ही नहीं पाते. That is one risk that investors face. Oh, I'm learning, I'm losing money, I'm learning, I'm losing money, I lost everything.
That is a risk in that. And second is the point made by Ramesh ji, that if you have a long-term wealth creation vision, has to be end of life. कि बस मुझे अमीर बनना है at the age of 55, मुझे अमीर नहीं बनना है at the age of 25. So that gives you a better perspective. So your thoughts on this? नहीं देखो, मैं एक चीज ऐसा जानता हूं कि जैसे जो भी मेरे पास समझो कई लोग जो बात करते हैं, पूछते हैं और बोलते हैं कि मेरे को क्या लगता है, जैसे कई लोग ऐसा भी बोलते हैं कि मेरे पास में कैपिटल नहीं है तो मैं कैसे शुरुआत करूं, मेरे जो करियर को है मैं कैसे शुरुआत करूं, मेरे पास में बड़ी कैपिटल नहीं है। तो मेरा ये व्यू है मेरा कि शेयर बाजार के अंदर में क्या है, शुरुआत करने के लिए बड़ी कैपिटल की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हम लोगों ने देखा है कई यहाँ पर जीरो से हीरो कई लोग ऐसे हुए हैं जो 20 साल 30 साल के अंदर में जीरो से नो कैपिटल और स्मॉल कैपिटल से उन्होंने एम्पायर खड़ा किया है, ठीक है, मार्केट के अंदर में। तो मेरा व्यू ये है कि जो आदमी अगर जल्दी शुरुआत करता है मार्केट में इन्वेस्टिंग, तो अगर सपोज, और वो गिरना तो निश्चित है शेयर बाजार में, बढ़िया से बढ़िया अगर एकदम जो गोल्ड क्लास भी अगर इन्वेस्टर होगा उसका भी 10 में से 6 कॉल गलत जाने वाला है। वो जो भी आप जितने भी बड़े बड़े लोगों को देख रहे हो उनका लाइफ में आपको 5 7 10 कॉल खाली ऐसे मिलेंगे जिनके कारण उनका बड़ा एम्पायर खड़ा हुआ है। बाकी का सबके अंदर में मीडियोकर आपको मार्क्स मिलते हैं या फेलियर है जो हमको मालूम नहीं पड़ता, इंक्लूडिंग मी, मेरा तो उससे भी ज्यादा है, ये आप समझ के चल रहा हो, मेरा कोई कंपैरिजन भी नहीं है। लेकिन सबकी लाइफ के अंदर में फेलियर की जो परसेंटेज होती है ना वो ज्यादा होती है। तो सवाल ये है कि जब आप फेल होते हो तो आप कितना कम खोते हो और जब कमाते हो तो कितना ज्यादा कमाते हो, ये सबसे ज्यादा शेयर बाजार के अंदर में इंपॉर्टेंट है। और मेरा ये मानना है कि जो जितने जल्दी यहाँ पे गिरना सीखता है, अगर आपके पास में छोटी कैपिटल है सपोज, और छोटी कैपिटल में अगर आप गिरना अगर आप सीखते हो तो आप क्या सीखते हो, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जब बच्चा बचपन में अगर गिरता है तो सबसे इंपॉर्टेंट लाइफ लॉन्ग लेसन वो सीखता है, लॉ ऑफ ग्रेविटी, कि अगर मैं ऐसे करूंगा, अगर ये बैलेंस मेरा नहीं हुआ, अगर एक दोनों टांग एक साथ उठाऊंगा तो मैं गिरने वाला हूँ। यही शेयर बाजार हमको सिखाता है। वो लेसन आप कितने में सीखते हो, 50,000 की कैपिटल लगा के या 5,000 की कैपिटल लगा के, लेसन तो एक ही है। उसके लिए आप चाहे 5,000 रुपया दे रहे हो या 5 करोड़ रुपया दे रहे हो, 500 करोड़ रुपया दे रहे हो, तो ये लाइफ में सीखना जरूरी है। तो मेरे ख्याल से जो जितना जल्दी इन्वेस्ट करता है, जितना जल्दी गिरता है और उस गलतियों से सीखता है, देखो जो वाइज मैन है वो ही लर्न्स फ्रॉम हिज ओन मिस्टेक्स, और जो स्मार्ट मैन है ही लर्न्स फ्रॉम अदर्स मिस्टेक्स। तो ये मार्केट का जो भी पूरा ये धारा है ना दोस्त, ये पूरा है ऑब्जर्वेशन का, क्यूरियोसिटी का, और दूसरों से और अपने आप के खुद की उन चीजों से सीखने का। तो ये अगर मैं सही जो मैं सुना उसके हिसाब से मैंने ये उत्तर दिया आपको। तो जैसा कि आपने कहा कि समझदार वो है जो दूसरों की गलतियों से सीखता है, तो आपने बहुत इंटरेस्टिंग लाइफ जी एज ए इन्वेस्टर। अभी तो लाइफ बहुत लंबी है, तो यदि आपको रीसेट मिले, ठीक है कि बेटा लिव योर लाइफ अगेन, तो कौन सी एक चीज है जो आपने नहीं की जो आप डेफिनेटली करोगे इन द वर्ल्ड ऑफ इन्वेस्टिंग, और एक कौन सी चीज है जो जो आपने नहीं जो आपने की थी लेकिन आप डेफिनेटली नहीं करोगे, बॉस ये काम नहीं करना। ये दो यदि आप शेयर कर सकते, समथिंग दैट एवरीबॉडी ऑल ऑफ अस कैन रिलेट टू। ऐसा यार, मैं तो एक चीज जो नहीं करूंगा पहले मैं बताता हूँ, और वो जो है कि ऑब्वियसली मैंने जीरो से शुरुआत किया और इनिशियल जो कैपिटल आई वो मेरी ट्रेडिंग से आई है, वो एक अलग बात है। लेकिन मैंने ट्रेडिंग में मैं इतना फेल हो चुका हूँ ट्रेडिंग कर करके कि शायद मैं शेयर बाजार के वापस करियर में आऊंगा तो मैं ये कसम खाऊंगा कि मैं ट्रेडिंग नहीं करूंगा। ट्रेडिंग से मेरा मतलब फ्यूचर ऑप्शन, ठीक है, वो मैं नहीं करूंगा। ये मेरा अपना ये नहीं है। और इसका मतलब ये नहीं है, देखो ट्रेडिंग में परसेंटेज जो है ना, दैट वो 99% लोग ट्रेडिंग में फेल होते हैं। 1% आदमी ट्रेडिंग में पैसा कमाता है, और वो 1% आदमी 99% आदमी का पैसा लेके जाता है, आप ये समझ लो। और बीच में आपके 5 फेयर वेदर फ्रेंड्स आपके बीच में, जो भी आप ट्रेड करते हो उसमें समझिए ब्रोकर्स आप जैसे हो गए, ब्रोकर्स हो गए, एक्सचेंज हो गया, सेबी हो गया, सर्विस टैक्स हो गया, और जो एसटीटी वेस्टीटी जो भी इतना आते हैं, ये आपके इंटरमीडियरीज है जो वो है। और तो ये बोल ट्रेडिंग जो है वो मैं नहीं करूंगा। और दूसरा क्या है, मैंने जो भी मैं आज जो मैं कर रहा हूँ वो चीज को मेरे को एक तो सीखने में बहुत टाइम लगा। समझो अगर अगर मैं मेरे लाइफ का करियर, अगर सपोज मैं मेरा 30 साल का करियर अगर मैं जोड़ूं 30 साल के करियर में, तो आप ये समझो कि 10 साल के बाद मेरे को ये रियलाइज हुआ कि ट्रेडिंग में तो मेरा बंटाधार हो रहा है, मेरे को ये नहीं करनी चाहिए। और कुछ मैंने मेरे लिए फॉर्मूला तैयार किया लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का, ठीक है।
लेकिन उसको भी फाइन ट्यून करते करते मेरे को 10 साल लग गए, आप ये समझ लीजिए। तो ये 30 साल के या 28 जो भी है 30 साल का करियर में, ये ठीक है कि मैंने मेरे लाइफ में बहुत अर्ली मैंने शुरुआत किया, मेरा जीवन टीन्स में मैंने चालू किया। तो वो जो सीखने में जो मैंने टाइम लगाया, इसलिए भी लगाया कि उस समय जैसा आप लोग सब जानते हो, कोई ना तो इंटरनेट था, ना कोई ब्रोकर कॉन्फ्रेंस थी, ना कोई ब्रोकर्स रिपोर्ट थी, ना बुक्स थी, और कुछ भी नहीं था। आप ट्रायल एंड एरर, खाली यही माध्यम था सीखने का लाइफ में, कि गिरो, पढ़ो और उठो और वापस चल पड़ो। तो वो सुमो रेसलर जैसा हाल था वो। तो वो जो पीरियड जो थोड़ा सा जो लंबा लग गया, तो शायद वो ज्ञान जल्दी हासिल करके और मैं अभी इस जमाने में, क्योंकि सब इंफॉर्मेशन नॉलेज सब फ्री है, आइडिया कि आप चुनते क्या हो, यहाँ पर समंदर के जैसे सब चीज फ्री में मिल रही है, आपको देखना है कि आप क्या चुनते हैं। तो उसमें थोड़ा सा मैं तेजी करूंगा, मतलब फास्टनेस करूंगा इसमें। एक्चुअली तेजी करूंगा मतलब बिकॉज अपने ये अपना भाषा हो जाता है। वहीं तो के मतलब लैंग्वेज आ जाती रियल लाइफ में भी जब मैं कुछ भी जा रहा हूँ, कुछ भी बात कर रहा हूँ, तो मैं सवाल ये, कोई भी नया बिजनेस करता हूँ तो ये पूछता हूँ बेटा इसमें स्टॉप लॉस कहाँ है? सो इट हैज बिकम अ पार्ट ऑफ आवर डीएनए, है ना, कि है। गड़बड़ हुआ, मैं इससे शादी कर रहा हूँ, स्टॉप लॉस क्या है? वो अरे वो कभी कभी ऐसा होता है यार, रात को कभी वाइफ पूछती है ना कितना बजा, तो मैं घड़ी देख के बोलता हूँ 2:30-3, वो तब भी वो दोनों पढ़ लेता है। Too big question. And let me ask you a question that all of us face. Okay? कि सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग तो अपनी जगह है, बट जनरली सक्सेस, इसमें लक का कोई रोल है कि इज इट फेयर टू से लक इज अ वेरी बिग फैक्टर, और इफ लक इज नॉट अ बिग फैक्टर? आई एम श्योर देयर इज नो इजी आंसर टू दिस, बट आई रियली वुड लव टू नो योर टेक ऑन दिस। ऐसा है उत्तम, जहां तक मैं अपने आप को जो समझता हूँ, बोले जाकी रही भावना जैसी, प्रभु सूरतिन देखई तैसी, जिसका जैसे विचार होता है। मेरे ख्याल से मेरे लाइफ में तो लक का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। मैं तो ये भी नहीं बोल सकता हूँ कि मैं तेरे जैसे आया, मैं अहमदाबाद पढ़ के आया हुआ हूँ, तो मेरे पास तो सरस्वती का भी उतना आशीर्वाद नहीं है। तो इस बोल कर मैं तो जो भी डिपेंड करता हूँ, जो भी आधार है मेरा, तो लक ही है। मैं इसका एग्जाम्पल तुमको दे सकता हूँ कि लक, I think that luck certainly plays very important role in investing. I don't know about other thing. Reason being, खाली एक आप एग्जांपल समझने का चेष्टा करना कि ये इट्स अ गेम ऑफ माइंड। ओके, इन्वेस्टिंग इज नॉट, यू आर नॉट डूइंग एनी फिजिकल लेबर इन यू नो ऑन ए शॉप फ्लोर, कि तुम जाकर कोई सीमेंट का कुछ फाउंड्री में कुछ काम कर रहे हो, या स्टील की फाउंड्री में कुछ काम कर रहे हो। आप खाली माइंड का गेम है, कंडीशन कैबिन में बैठकर आप पूरी दुनिया का सब देख रहे हो, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और माइंड का गेम है। एंड इट्स नॉट ओनली द गेम ऑफ माइंड, इट्स अ वेरी रिस्की बिजनेस, राइट। और इसका जो आउटकम है, वो आउटकम अनस्टेबल है, उसकी कोई परिभाषा नहीं है। जैसे लाइक सपोज अगर आप एफडी करते हो, फिक्स डिपॉजिट करते हो, तो वहां पर इनपुट और आउटपुट सेम है, कि आपने 5 लाख रुपया एफडी में डाला और आपको 6%, 6% का आपको इंटरेस्ट मिलेगा, आपको 12 साल के अंदर में रुपया आपका डबल हो जाएगा। आपका या क्यूमुलेटिव जोड़ोगे तो 8.5 साल 9 साल में आपका रुपया डबल हो जाएगा। यहाँ पर इनपुट आउटपुट सेम है। लेकिन स्टॉक मार्केट के अंदर में क्या है, यहाँ पर 2 और 2 4 ही नहीं होते हैं, यहाँ पर 2 और 2 और 2 भी होते हैं, 2 और 2 0 भी होते हैं, और 2 और 2 22 भी होते हैं। ठीक है, तो अब आपको अगर 2 और 2 और 22 करना है, जबकि 99% आदमियों का 2 और 2 0 भी हो रहा है, और 2 भी हो रहा है, और 4 भी हो रहा है, आपका 22 कैसे होगा? तो आपका 22 मेरे ख्याल से तभी होगा जब आपकी किस्मत आपके साथ में होगी। वो आपके अच्छे कर्म करने से आपकी किस्मत बनती है, वो दूसरा मैटर है। तो मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा बिजनेस जिसमें रिस्क है, उसके अंदर में लक का बहुत बड़ा योगदान रहता है। और मैं तो इस बात पर पूरा, मैं तो कभी कभी ऐसा लगता है कि मेरा 150% लक हूँ, 50% वो कट ऑफ इसके लिए कि जो मैंने गलतियां कर रहा हूँ और उसके दंड मेरे को मिलता है, उसके बाद भी अगर मैं थोड़ा बहुत 2-4 क्लास सक्सेसफुल हूँ, तो वो मेरा लक है। तो 150% लक और 50% माई एरर्स। सुनता नोटेड, रहिए। नोटेड, हाँ, नोटेड। मैं म्यूट पे था। Thank you for sharing, Vijay ji, lots of things. Now, there's a compliment I want to give you. This program today, you know, actually part of investor education, right? And this is a World Investor Week. ISCO has celebrate karta. The entire week is celebrating investors. Today is the full day program of Bombay Stock Exchange Brokers Forum. Again, we are celebrating investors. We have got senior government functionaries to come and speak to us. We have had brain session on investors who catch it. We have had market outlooks. We have got successful investors to share their knowledge. But आप भी एक तरह से इन्वेस्टर एजुकेशन करते हो। आपके जो सॉन्ग्स हैं
ठीक है, बेसिकली सॉन्ग्स कई लोग एक्सप्रेशन के लिए करते हैं, ये करते हैं, ये आपके, मुझे लगता है आप चीटिंग कर रहे हो. इट्स नॉट एक्सप्रेशन, यू आर एक्चुअली शेयरिंग योर एक्सपीरियंसेस एंड ट्राइंग टू बेटर सीख लो कि दिस इज व्हाट इज देयर इन द सॉन्ग्स. For that, actually, many, I get lots of forward ki Vijay ji ne kya kaya. In fact, I've seen you on national TV where people ask you to sing a line or two. But having said that, singing is one thing, but the choice of words has a lot of investor education built in it, and people quote it. My son has been humming my songs at times, especially like as Vinny Malum. So for that, I don't know how many people acknowledge it, but I would really like to acknowledge that on a public forum. Really appreciate what you've been doing and that. In fact, you could quote a couple of lines and then members, it comes to your mind. So people can identify what I'm trying to say from that point of view, if you feel like. You want me to recite some? हम कोई भी दो लाइन जो आपको लगता है कि देखो बेटा मैं क्या कह गया तुम समझे कि नहीं, if you can. अच्छा ठीक है, तो मेरे को दो लाइन अभी जो याद आ रही है वो ऐसी है कि वो जो नया नया इन्वेस्टर मार्केट के अंदर में जो आता है और वो बड़े सपने लेके आता है ना, जैसे कि हाँ भाई ये तुम होगी तो ऐसा होगा, तुम होगी तो वैसा होगा, बेचारे बड़े ताना बाना और सपने बोल के आते हैं और उनकी फिर बाद में क्या हालत होती है. तो मैं कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, ये ध्रुव सत्य है मार्केट का कि उनकी स्थिति क्या होती है. वो मैंने एक सॉन्ग में लिखा था, वो पैरोडी है उसका, मेरे राष्ट्रीय कमर, उसकी पैरोडी है. तो मैं आपको उसका अंतरा बताता हूँ. अंतरा ऐसा है कि थोड़ा पैसा जो आना शुरू हो गया, मुझको लगने लगा मैं गुरु हो गया, कॉन्फिडेंस वो आया. सर गा के सुनाइए ना सर गा के सुनाइए. अरे नहीं गा के अभी आवाज नहीं है अभी सर प्लीज मजा आएगा. थोड़ा पैसा जो आना शुरू हो गया, मुझको लगने लगा मैं गुरु हो गया, कॉन्फिडेंस वो आया, बड़ा दाव लगाया, पैसा इतना डुबाया मजा आ गया, मेरे फ्यूचर ऑप्शन ऑलवेज दी टेंशन, तूने इतना सताया मजा आ गया, मेरे अंकल के ड्राइवर से नॉलेज लिया, ना पढ़ाई कोई की ना ही कॉलेज किया, लोगों की सुन लिया, पेनी स्टॉक चुन लिया, पैसा इतना डुबाया मजा आ गया. तो इसमें पूरा so मैंने व्यथा लिखा है, पूरा नए इन्वेस्टरों की पूरी व्यथा लिखी हुई है इस गाने के अंदर में. वो पूरा सुनेंगे लोग तो उनको. That is true. Anybody who has expensive market say कि really investors, you earn small money and suddenly you think you're God, and you end up doing things that same and your sanity would not do. This is actually these words. Okay, this must seem like fun, but there's a lot of knowledge and experience that go behind that. So you should think these thoughts seriously. With that, thank you, Vijay ji. Thank you so much for coming on the show and being a part of this program. Really appreciate your comment. Thank you so much. Thank you. Okay, Vijay ji, it was lovely listening to you. Thank you.